السلام علیکم. ہماتن گوش میں خوش آمدید. تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہماتن گوش کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ. تقدیر کی فسوں گری، قسمت کی چال بازی یا مقدر کا کھیل. جرم، افسر شاہی اور جاگیرداری کے پس منظر میں لکھی گئی ایک دلچسپ داستان. گرداب. گرداب قسط نمبر 10. منزل پر پہنچنے کے بعد اسے لے جانے والے نے ماسٹر آفتاب کی آمد کی اطلاع اندر بھجوا دی. فوراً ہی ایک ملازم اسے اپنے ساتھ اندر ایک بڑے ڈرائنگ روم میں لے گیا. ملازم کے انداز میں احترام موجود تھا. اپنے ساتھ ہونے والے سلوک نے آفتاب کے اس خدشے کو کچھ کم کر دیا کہ وہاں اسے دماغ درست کرنے کی نیت سے بلوایا گیا ہے. تھوڑی دیر بعد چودھری اشرف ایک تقریباً 4 سالہ بچے کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو آفتاب کے باقی ماندہ خدشات بھی کچھ کم ہو گئے تھے. یہ میرا بیٹا منور ہے، بہت ذہین بچہ ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیوں کے بعد مجھے یہ بیٹا عطا کیا، اس لیے اس میں ہم سب کی جان اٹکی رہتی ہے. بچے کی ماں اس کو اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتی، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ابتدائی چند سال اسے گھر پر ہی کچھ تعلیم دلوا دی جائے. میں چاہتا تو اس مقصد کے لیے شہر سے کسی استاد کو بھی بلوا سکتا تھا، لیکن سننے میں آیا ہے کہ تم بھی اچھے خاصے لائق فائق آدمی ہو، اس لیے سوچا پہلے تمہیں ہی آزما کر دیکھ لیا جائے. کل سے بچے کو پڑھانے آ جانا، میرا ڈرائیور تمہیں لینے اور چھوڑنے چلا جایا کرے گا. اگر ہم تم سے مطمئن ہو گئے تو تمہاری ملازمت پکی، ورنہ پھر شہر سے کسی دوسرے استاد کو بلوا لیں گے. چودھری آفتاب نے ایک صوفے پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہتے ہوئے آفتاب کو حکم سنا ڈالا. اس کا یہ تحکمانہ انداز آفتاب کو بہت برا محسوس ہو رہا تھا. اول تو وہ گھروں پر جا کر بچوں کو ٹیوشن دینا پسند نہیں کرتا تھا، دوسرے بحیثیت استاد اس کی نظر میں اس کا اپنا ایک مقام بھی تھا. اس مقام اور عزت کو خاطر میں لائے بغیر چودھری اشرف اس پر یوں حکم چلائے چلا جا رہا تھا. اسے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی. غصے اور جوش کی کیفیت میں اس کے ہونٹ اس حکم پر انکار کرنے کے لیے کچھ کھلے ہی تھے، لیکن پھر اچانک سے اسے کچھ ہوش آ گیا. اسے یاد آیا کہ نئے AC شہریار نے چودھری افتخار سے براہ راست تصادم کے بجائے مصالحانہ حکمت عملی سے کام لینے کی بات بھی کی تھی. چودھری اشرف چودھری افتخار کا داماد تھا، چنانچہ مصلحت پسندی کا تقاضا یہی تھا کہ آفتاب چودھری اشرف کو انکار بالکل نہ کرے. چودھری اشرف کی بات مان لینے سے اس کی حویلی تک رسائی ضرور ہو جایا کرے گی. ممکن تھا کہ وہ چودھری اشرف کو اپنا ہم خیال بنانے میں کامیاب بھی ہو جائے، اور کچھ نہیں ہوتا تو کم از کم اتنا تو ہو جائے گا کہ اسے منور نام کے اس پیارے سے بچے کی تعلیم و تربیت کا موقع بھی مل جائے گا. آفتاب احمد استاد کے کردار کی اہمیت سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ وہ اپنی کوشش سے اس کچے ذہن کے معصوم بچے کی سوچوں کا رخ کسی اچھی طرف موڑ سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ اپنے ماں باپ، دادا اور نانا کی روش سے کچھ ہٹ کر بھی چل سکے گا. اس چھوٹی سی امید کے سہارے اس نے انکار کے الفاظ کو اپنے ہونٹوں پر نہ آنے دیا اور چودھری اشرف سے حامی بھر لی. وہاں سے فارغ ہو کر وہ ڈرائیور کے ساتھ واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچا تو اس کا ساتھی استاد اس کا لکھا ہوا کاغذ ہاتھ میں پکڑے حیران پریشان کھڑا تھا. یہ کیا ہے آفتاب صاحب؟ آفتاب احمد کو دیکھتے ہی اس نے فوراً سوال داغا. کچھ نہیں، میں خواہ وہم کا شکار ہو چلا تھا. آفتاب احمد نے اس کے ہاتھ سے کاغذ چھین لیا اور تروڑ مڑوڑ کر پھینک دیا. اچھا، تو صرف وہم تھا؟ میری تو جان ہی نکل گئی تھی. اگر تم اس وقت نہ آئے ہوتے تو میں تھوڑی دیر میں کہیں تمہیں ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوتا. اس کا ساتھی کچھ خفا سا نظر آتا تھا. جانے دو یار، جانے دو، کیا کروں، میں بھی تو ایک عام سا ہی آدمی ہوں، اس لیے کبھی کبھی ڈر بھی جایا کرتا ہوں. آفتاب احمد نے اس کا شانہ تھپتھپایا اور اپنی کرسی پر بیٹھ کر قلم سنبھال لیا. اسے اپنا ادھورا کالم آج ہی مکمل کرنا تھا.
चौधरी साहब, सनोबर के दिन करीब आ रहे हैं, लाहौर वाली कोठी में उसके रहने का बंदोबस्त भी करवा दीजिए ना। चौधरी इफ्तिखार को फारिग देखकर बड़ी चौधराइन उसके पास चली आई और अपना मुद्दा भी बयान कर दिया। चौधरी इफ्तिखार के खानदान में रिवाज था कि जिस औरत की डिलीवरी के दिन करीब आते थे उसे लाहौर में चौधरी इफ्तिखार की कोठी में मुंतकिल करवा दिया जाता था, ताकि बरवक्त अस्पताल पहुंचने में कोई मुश्किल पेश ना आए। इस तरह हवेली के मकीनों को किसी किस्म के नुकसान का एहतमाल नहीं हुआ करता था। अपने लिए ये बंदोबस्त करने के बाद वो लोग इस फर्ज से गाफिल हो गए थे कि गांव में मुनासिब तिब्बी सहूलियात फराहम कर दी जाएं। स्कूल की तरह अस्पताल की तामीर में भी किसी को कोई दिलचस्पी ही न थी। गवर्नमेंट की तरफ से बरसों पहले एक छोटी सी डिस्पेंसरी यहाँ कायम की गई थी, लेकिन उस डिस्पेंसरी में नज़ले ज़ुकाम की चंद गोलियों के सिवा कुछ नहीं मिल सकता था। कई सालों से किसी को तौफीक नहीं थी या फिर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर ने इस डिस्पेंसरी में कभी भी कदम नहीं रखा था। एक कंपाउंडर था जो अपनी सूझबूझ के मुताबिक ज़रूरत पड़ने पर लोगों को मामूली दवाएं दिया करता था। कुछ गांव के लोगों में डॉक्टरी इलाज के लिए इतनी ज़्यादा पसंदीदगी भी नज़र न आती थी। डॉक्टर के मुकाबले में वो हकीम से इलाज करवाना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन बाज़ नाजुक मामलात में डिस्पेंसरी का कंपाउंडर और गांव का मकबूल हकीम दोनों ही कोई मदद नहीं कर पाया करते थे, खसूसन औरतों के केसेस में। गांव में मौजूद 2 अदद दाइयाँ भी सारे मामलात संभालती थी, लेकिन कभी कभी कोई संगीन मामला होता तो वो भी बेबस थी। लेकिन जहाँ मामला ऐसा होता कि ऑपरेशन ज़रूरी होता, वहाँ ये दाइयाँ भी बेबस हो जाया करती थी और अंजाम औरत की बेकस और बेबस दर्दनाक मौत पर होता था, जिसे उनके वर्सा तकदीर का लिखा समझकर हमेशा के लिए कबूल कर लिया करते थे। गांव की तकदीर बदलना जिन लोगों के हाथों में था वो इस सिलसिले में कुछ करना ही नहीं चाहते थे। उनके लिए यही काफ़ी था कि उनके घर की औरतें और उनकी होने वाली औलादें बिल्कुल महफूज हैं। गांव ज़रूरी सहूलियात से आरी था। अगर आरी था तो क्या हुआ, वो खुद अपने लिए तो हर तरह की सहूलत हासिल करने पर कादिर थे। जैसे इस वक्त बड़ी चौधराइन ने सनोबर के सिलसिले में चौधरी साहब से बात की थी। ठीक है, मैं कोठी फ़ोन कर देता हूँ, वहाँ मुलाजिम सारा बंदोबस्त कर लेंगे। यहाँ से कौन कौन जाएगा सनोबर के साथ? अभी तो मैं रानी और उसकी माँ को भिजवाऊंगी। दोनों माँ बेटी बहुत खिदमत गुजार खवातीन हैं, सनोबर का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल भी रखेंगी। मैं और नाहिद एक आध दिन पहले चले जाएंगे, बस इससे पहले नहीं। यहाँ हवेली छोड़कर ज़्यादा दिन बाहर भी तो नहीं रह सकती ना। इन कमी कमीनियों के सर पर कोई सवार ना रहे ना तो सारा कुछ चौपट हो जाया करता है यहाँ पर। बड़ी चौधराइन ने नखुवत से जवाब दिया। अच्छी बात है, तुम लोगों को वाकई आंखें खुली रखनी चाहिए। उर्स वाली रात देखा नहीं था, ज़रा सी बेखबरी ने कितनी तबाही मचा डाली थी। मुझे इल्म होता कि वो लड़का इस खसलत का निकलेगा ना तो नौकरों को मना कर देता कि उसे शराब वराब बिल्कुल ना पहुँचाएं। ज़रा सी बात थी, लेकिन उसकी वजह से अच्छी खासी हम मुश्किल में पड़ गए। चौधरी इफ्तिखार को रह रह कर हवेली में होने वाला हादसा याद आता था। बस जी बस चौधरी साहब, बस करें। उस दिन तो किसी की नज़र लग गई थी हवेली को। सारे काम इतने अच्छे तरीके से हुए थे कि हासिदीन को उंगली उठाने का मौका भी न मिल सका। उनका यही हसद हमारी तबाही का बाइस बन गया और मोती वाला का बेटा यहाँ चल बसा। बल्कि मुझे तो लगता है कि कहीं किसी ने जानबूझकर आपको कोई मुश्किल में डालने की कोशिश तो नहीं की और जानबूझकर कमरे को आग लगवा दी हो। कुछ मालूम थोड़ी होता है किसी का, कोई हासिद होगा ऐसा। सजन बनकर पीठ में छुरा घोंप देते हैं ये लोग। सुना आपने? चौधरी की बात सुनकर बड़ी चौधराइन ने अपने ख्यालात का इजहार करना बहुत ज़रूरी समझा। मुंह बंद रखो बेवकूफ़ औरत, अभी कुछ मत बोलो। अभी तक जो बात कहने की किसी की हिम्मत नहीं हुई वो तुम लोगों के जहनों में डाल दोगी। अपना मुंह बिल्कुल बंद रखो। हादसे का इल्ज़ाम लड़के के सर पर ही रहे तो बेहतर है, इसी में हमारी भलाई है। अगर मोती वाला को ये ख्याल आ गया ना कि उसका बेटा मेरी किसी दुश्मनी की भेंट चढ़ा है तो वो और भी ज़्यादा बिदक जाएगा और पुलिस में ये कहेगा कि मेरा बेटा इसकी दुश्मनी की वजह से मारा गया। चौधरी इफ्तिखार ने बड़ी चौधराइन को बहुत ज़ोर से झाड़ा। बुरा ना माने चौधरी साहब, मैं तो बस बेख्याली में ही ऐसी बात कह गई थी। बड़ी चौधराइन ने चौधरी इफ्तिखार का मूड ख़राब होते देखकर फ़ौरन से माजरत कर डाली। जब खोपड़ी के अंदर भेजा नहीं है तो क्यों हर मामले में दखल देती है तू? मुंह बंद करके क्यों नहीं बैठा जाता तुम लोगों से?
वैसे भी औरत ज़ात को क्या ज़रूरत है मर्दों के इन तमाम मामलात में बोलने की। तुम बस बैठकर हवेली के अंदर के मामलात को देखा करो। तुमसे ये मामलात समझ जाए ना तो बहुत, बाकी सब देखने के लिए मैं अभी मौजूद हूँ। बड़ी चौधराइन की माजरत के बावजूद चौधरी इफ्तिखार ने उसकी ठीक ठाक खिंचाई कर डाली। गलती हो गई चौधरी साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा ध्यान रखूंगी। बड़ी चौधराइन एक बार फिर माजरती अल्फाज अदा करने लगी। ठीक है, आइंदा ज़बान को काबू में रखना। अब जाओ यहाँ से। चौधरी इफ्तिखार ने रऊनत भरे अंदाज में बड़ी चौधराइन की माजरत कबूल करते हुए उसको हुक्म दिया। बड़ी चौधराइन इस हुक्म को सुनकर अपनी जगह से खड़ी हुई, लेकिन वहां से गई नहीं। अब क्या है? चौधरी इफ्तिखार ने उसके वहां खड़े रहने पर गुस्से से सवाल किया। एक बात और भी करनी थी चौधरी साहब। बड़ी चौधराइन मिनमिनाई। क्या बात करनी थी तुझे? चौधरी थोड़ा धीमा पड़ा। नाहिद ने मुझसे कहा था कि मैं आपसे किश्वर के भी लाहौर जाने की इजाजत ले लूं। बेचारी बच्ची के लिए जिंदगी में और तो कोई रौनक बची नहीं। जरा हवेली से निकलकर कुछ दिनों के लिए लाहौर चली जाएगी ना तो उसका दिल कुछ बहल जाएगा। फिर सनोबर को भी बहन का कुछ सहारा मिल जाएगा। मुलाजमा लाख ख्याल रखें, पर बहन की तो बात अलग है ना। दोनों बहनें एक जगह रहेंगी ना तो दोनों का दिल बहला रहेगा। बड़ी चौधराइन ने अपना मसला पेश किया। दिल बहलाने का क्या मसला है जनाब? हवेली कोई छोटी है जो उसे देखकर बंदे का दिल ऊब जाए? जरूरत की कोई चीज यहाँ पर कम नहीं। कभी तुम लोग ख्वाहिश करो तो तुम्हारी मर्जी की खरीदारी के लिए तुम लोगों को शहर भी भिजवा देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी शिकवे ख़त्म नहीं होते तुम लोगों के। वैसे भी किश्वर से कहो कि हवेली में दिल लगाने की आदत डाल ले। उसे सारी हयाती अपनी आखिरी साह तक इसी हवेली में रहना पड़ेगा। यहाँ दिल नहीं लगाएगी ना तो बहुत पछताएगी, याद रखना। चौधरी इफ्तिखार ने बड़ी चौधराइन की दरखास्त में एक अच्छी खासी तकरीर झाड़ी। वो सब समझती है चौधरी साहब, सब कुछ समझती है। उसका ऐसी वैसी बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। बड़े फ़कीरों वाले मिजाज वाली लड़की है। कपड़े लत्ते जेवर मेहंदी किसी चीज़ का भी शौक नहीं उसे, बस अपनी ही किताबों में मगन रहती है। जो उसके लाहौर जाने का किस्सा मैंने आपके सामने छेड़ा है ना, इसकी फरमाइश भी सनोबर ने नाहिद से की थी। असल में इतने दिन अकेली रहने के ख्याल से घबराती है ना वो। पिछली बार भी जब बच्चे की पैदाइश पर लाहौर चली गई थी तो यही शिकवा कर रही थी कि गांव से इतनी दूर अनजान जगह पर रहने से कुछ ज़्यादा ही तबीयत घबरा रही थी उसकी। अब अगर किश्वर साथ चली जाएगी तो उसकी ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। वैसे ही इस बार उसके दिल को कुछ ज़्यादा घबराहट है, कुछ कम हिम्मत सी हो रही है वो इस दफ़ा। बड़ी चौधराइन को सौतन की बेटियों से मोहब्बत इतनी तो न थी, लेकिन उन लोगों ने ये काम उसके ज़िम्मे लगाया था तो उसके पूरा होने में ही उसकी इज्जत नज़र आती थी। अगर वो चौधरी इफ्तिखार से ये फरमाइश ना मनवा पाती तो उसकी अपनी सौकन और उसकी बेटियों के सामने नाक नीची हो जाती। इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह चौधरी इफ्तिखार कायल हो जाए और उसकी बात मान जाए। ठीक है, अगर सनोबर की तबीयत का मामला है तो भिजवा दो किश्वर को साथ में, लेकिन ध्यान से समझा बुझा कर भेजना। ये ना हो कि शहर जाकर खुद को बिल्कुल आज़ाद समझने लगे। चौधरी इफ्तिखार ने आखिरकार हामी भरी, लेकिन साथ में धमकी भी दी। आप फिक्र न करें चौधरी साहब, मैं सब समझा दूंगी और सबको समझा दूंगी। बड़ी चौधराइन चौधरी इफ्तिखार का जवाब सुनकर जोश से बोली और कमरे से तेजी से बाहर निकल गई। बाहर निकलते हुए उसका अंदाज कुछ फातिहाना सा था। वो एक बार फिर ये साबित करने में कामयाब हो गई थी कि हवेली और चौधरी दोनों पर उसका राज सबसे ज़्यादा मुस्तहकम है। बंद कमरे के अंदर जो बेइज्जती हुई थी उसकी किसे भनक पड़ सकती थी। मौजूदा फैसले की रोशनी में तो वो फातेह नजर आती थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी। सर, पीराबाद से मास्टर आफ्ताब आपसे मिलने के लिए आए हैं। शहरियार अपने दफ्तर में बैठा किसी फाइल का मुताला कर रहा था कि अब्दुल मनान ने उसे आकर इत्तला दी। ठीक है, उन्हें अंदर भेजवाओ, शहरियार ने जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट के वक्फे के बाद मास्टर आफ्ताब उसके कमरे में आ चुका था। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ़ रखिए। शहरियार ने खुशदिली से उसके सलाम का जवाब दिया। बग़ैर टाइम लिए आने पर कुछ माजरत चाहता हूँ। असल में मेरे पास फ़ोन की सहूलत मौजूद नहीं है, वरना आने से पहले फ़ोन पर आपसे इजाज़त ले लेता। आज लाहौर के लिए रवाना हो रहा था तो सोचा आपसे भी मुलाकात करता चला जाऊं। वैसे मुझे अंदाज़ा है कि इस तरह बेवक्त आने से आप डिस्टर्ब हुए होंगे।
आफताब ने मुहज़्ज़बाना अंदाज में शहरयार से बगैर वक्त लिए आने पर कुछ माजरत करते हुए कहा, ऐसा तो कोई मसला नहीं आफताब साहब, मैं इस सीट पर अफसरी दिखाने के लिए तो नहीं बैठा ना, बल्कि लोगों की खिदमत के लिए ही बैठा हूँ। यूं भी बेवक्त के मुलाकातियों से निमटने की अब मुझे कुछ आदत सी हो चली है। लोग बिला मकसद सिर्फ अपने इलाके के एसी से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए भी यहाँ चले आते हैं। आपकी आमद के बारे में तो मुझे मालूम है कि ये बेमकसद नहीं होगी। आप जिस मसले के हल के लिए इतने अरसे से दरखास्तों पर दरखास्तें भेजते रहे, अब उसके हल की कुछ उम्मीद नहीं है, तो आपका यहाँ आना और इस बारे में कुछ पूछना बिल्कुल जायज़ है ना? शहरयार ने मुस्कुराते हुए मास्टर आफताब की बात का अच्छा और खुला जवाब दिया। आपने मेरी आमद के बारे में काफ़ी दुरुस्त अंदाज़ा लगाया है जनाब। असल में स्कूल को तरक्की देना और इलाके के बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना मेरा ख्वाब है। हमारे मुल्क की 70% से ज़्यादा आबादी देहातों में आबाद है और बेशुमार देहातों में तालीम का कोई माकूल बंदोबस्त मौजूद नहीं। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो मुल्क का मुस्तकबिल कैसे संवरेगा? ये इल्म से दूरी ही तो है कि हम पाकिस्तान के क़याम के इतने अरसे बाद भी इतनी तरक्की नहीं कर पाए जितनी हमें करनी चाहिए। बहैसियत एक पाकिस्तानी मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं कम अज़ कम इस इलाके में कुछ इल्म की रोशनी तो फैला दूँ। चिराग से चिराग जलने का सिलसिला खुद ही शुरू हो जाएगा। मास्टर आफताब ने अपने ख़यालात का इजहार किया। मुझे आपका तर्ज़ फ़िक्र बहुत पसंद आया जनाब। आपकी इसी स्पिरिट का मैंने पहली मुलाकात में बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा लिया था और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बराह रास्त तसादुम के बगैर बात बन जाए। सरकारी हुक्म जारी करना इतना मुश्किल काम नहीं, लेकिन मेरे डायरेक्ट एक्शन लेने को चौधरी इफ्तिखार तबले जंग समझेगा। फ़िलहाल तो मैंने इस मामले में उन्हें इसलिए भी ज़्यादा नहीं छेड़ा कि अभी वो अपनी हवेली में मोतीवाला के बेटे की मौत की वजह से बहुत परेशान हैं। लेकिन आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, आपका स्कूल ज़रूर तरक्की करके ही रहेगा। शहरयार ने मास्टर आफताब को कुछ तसल्ली देना चाहिए। बस ये काम भी हो जाए तो मुझे अच्छे तरीके से सुकून मिलेगा। वैसे आप इत्मीनान रखें, मुझे आपकी पॉलिसी पर कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि मैं खुद भी इस पर अमल पैरा हो गया हूँ। चौधरी इफ्तिखार के दामाद चौधरी अशरफ ने मुझे अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कह दिया। ज़ाती तौर पर घर जाकर ट्यूशन देने को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन इस नापसंदीदगी के बावजूद चौधरी अशरफ की बात इसलिए मान ली कि मेरे इनकार को बगावत समझते हुए वो मुझसे दुश्मनी मज़ीद पाल लेगा। अपनी ज़ात के नुकसान के लिए मुझे कोई इस बात की परवाह भी न थी, लेकिन स्कूल की मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। मैं दरमियान से हट गया तो दूसरा यहाँ कोई टिकने और रुकने वाला भी ना होगा। यह आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया जनाब। फ़िलहाल हमें इसी तरह की मसलहत पसंदी से काम लेना पड़ेगा। मास्टर आफताब की बात सुनकर शहरयार ने उसके फ़ैसले की हिमायत की और फिर पुरसोच अंदाज में पूछा, आप सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं, सहाफ़ी हलके में आपकी दोस्तियाँ वगैरह तो होंगी ज़रूर। बहुत ज़्यादा तो नहीं हैं। असल में मैं ज़रा अलग थलग रहकर खामोशी से काम करने वाला बंदा हूँ। लोगों से मिलता हूँ, कम मिलता हूँ, लेकिन जिनसे मिलता हूँ ना, उनसे बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ नहीं होता। सहाफ़ियों की ग्रुप बंदियाँ और ख़ास अफराद, इदारों, जमातों से हमदर्दियाँ मुझे कुछ पसंद नहीं आती। लोग सहाफ़त के मुक़द्दस पेशे में रहकर भी मुनाफिकाना रवैया इख्तियार करके बैठते हैं। इसलिए मेरे बस गिने चुने अफराद हैं जिनसे करीबी ताल्लुकात बने हुए हैं, इसके अलावा नहीं। मास्टर आफताब ने शहरयार को तफसीली जवाब दिया। इन चंद एक अफराद में कोई एक तो ऐसा होगा जो आपके कहने पर पीराबाद की सूरत हाल पर कलम उठा सके। मास्टर आफताब का जवाब सुनकर शहरयार ने दूसरा सवाल उठाया। हाँ, मेरा एक दोस्त ऐसा है जो मेरे कहने पर यह काम कर देगा, लेकिन मैं किसी और से क्यों कहूँ? मैं खुद भी तो ये काम कर सकता हूँ। पहले भी ढके छुपे अंदाज में यहाँ के मसाइल की निशानदही करता ही रहा हूँ ना। आपके पिछले कॉलम्स मैंने देखे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब आप ये काम ना करें। आप सहाफ़त के साथ यहाँ रहकर भी काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बार बार अगर आप ही इस सिलसिले में लिखते रहे तो चौधरी इफ्तिखार आपकी खोज में लग जाएगा और मैं नहीं चाहता कि इतने कीमती शख्स का कोई नुकसान हो। आप बेशक अपना नाम इस्तेमाल नहीं करते
और कलमी नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब कोई खोज लगाने पर उतर आए ना तो उसके लिए असल बंदे तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं रहता। अब तो यूं भी आपकी किताब छपने वाली है, किताब के बाद आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा अहम हो जाएंगे। मास्टर आफ्ताब का जवाब सुनकर शहरयार ने अपनी कही बात की तकरीबन पूरी वजाहत कर दी। अगर आपकी यही राय है तो फिर ठीक है, मैं अपने सहाफ़ी दोस्त से बात करके देखता हूँ। वो काफ़ी मकबूल सहाफ़ी है और सच लिखने से बिल्कुल नहीं घबराता। अपने सच की वजह से बेचारे को अक्सर धमकियाँ और कभी पाबंदियों का शिकार भी रहना पड़ता है। मैं पीर आबाद के सिलसिले में कॉलम लिखने की फरमाइश करूँगा ना तो वो कभी इनकार नहीं करेगा। बस आप ये बता दें कि कॉलम किस नौइयत का होना चाहिए और उसमें किन नुकात पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, ताकि मैं अपने दोस्त को कुछ ब्रीफिंग दे सकूं। मास्टर आफ्ताब के पूछने पर शहरयार धीमी आवाज़ में उसे अपने जहन में मौजूद तजावीज़ के मुतालिक समझाने लगा। शहरयार की हर बात को गौर से सुनने के बाद मास्टर आफ्ताब का सर जवाबन मुसलसल असबाती अंदाज में हरकत करता नजर आ रहा था। सलाम चौधरी साहब। क़यास मोहम्मद और नूरा ने हाथ जोड़कर चौधरी इफ्तिखार को सलाम किया, जिसका जवाब देने के बजाय चौधरी इफ्तिखार बेनियाजी से हुक्का गुड़गुड़ाता नजर आता था। शहर की महफिलों में और सफ़र के दौरान वो ज़्यादा सिगार का इस्तेमाल करता था, लेकिन हवेली में होने की सूरत में उसे हुक्का ही सबसे ज़्यादा महबूब था। इस वक्त भी वो अपने महबूब हुक्के के साथ मसरूफ़ था। नूरा और क़यास मोहम्मद को बारियाबी की इजाज़त देने के बावजूद बिल्कुल उन्हें फरामोश किए बैठा था। नूरा और क़यास मोहम्मद, जो पहले ही बहुत ज़्यादा डरते डरते वहाँ आए थे, चौधरी के इस अंदाज को देखकर सलाम के बाद ज़बान से एक लफ्ज़ भी मज़ीद अदा न कर सके। वो जिस मकसद के लिए यहाँ आए थे उसको बयान करने में वैसे ही उनकी ज़बानें तालू के साथ चिपकी जा रही थीं, मगर ज़रूरत ऐसी थी कि यहाँ आए बग़ैर कोई चारा भी तो ना बनता था। ज़ोहरा के ससुराल वालों ने बता दिया था कि रब नवाज 10 दिन बाद गांव आने वाला है। रब नवाज बहुत कम दिन की छुट्टियों पर आ रहा था, इसलिए उसके आते ही शादी की तकरीबात का आगाज़ भी हो जाना चाहिए था। इधर नूरा और ग़यास मोहम्मद के पास तैयारी का कोई सामान और बंदोबस्त भी तो न था। उनका सारा इन्हिसार चौधरी इफ्तिखार से कर्ज की फराहमी पर ही तो था। रब नवाज के गांव पहुंचने की तारीखों का उन्हें पहले ही अंदाज़ा था और वो सोच रहे थे कि उर्स के फौरन बाद चौधरी इफ्तिखार की खिदमत में हाजिर होकर उससे कर्ज तलब करेंगे। फिर नूरा और ग़यास मोहम्मद के पास हवेली के लिए अंजाम दी गई खिदमत का हवाला भी तो मौजूद था। उन्हें यकीन था कि वो चौधरी इफ्तिखार को उसका वास्ता देकर उनसे कर्ज हासिल करने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। लेकिन उर्स के बाद तो सूरत हाल बिल्कुल ही तब्दील हो गई थी। हवेली में होने वाले हादसे ने चौधरी इफ्तिखार का मिजाज कुछ तब्दील कर दिया था, और इतना तब्दील था कि नूरा और ग़यास मोहम्मद उसके पास आने की हिम्मत भी ना कर सके थे। लेकिन अब शादी बिल्कुल सर पर खड़ी थी। हवेली में हुए हादसे को भी काफ़ी ज़्यादा दिन गुजर चुके थे, इसलिए डरते डरते सहमे हुए वो दोनों चौधरी इफ्तिखार के पास आकर बैठ गए। लेकिन अब जैसे सारी हिम्मत सल्ब हो गई थी और वो दोनों बस हाथ जोड़े और सर और नज़रें नीचे झुकाए चौधरी इफ्तिखार की नज़रें इल्तफ़ात के मुंतज़िर बैठे नज़र आते थे। हाँ भाई ग़यास मोहम्मद, बोलना, क्या बात है, क्यों आया है? आखिर चौधरी ने हुक्के की नय होंठों से जुदा करके बाएं जानिब हाथ बांधकर हुक्म के मुंतज़िर खड़े मुअद्दब ग़ुलाम को थमाई और उन लोगों की तरफ मुतवज्जो हुआ। आपकी रियाया हूँ सरकार, मुश्किल में हूँ, इसलिए मदद मांगने आपके पास पहुँचा हूँ। ग़यास मोहम्मद ने आजी से अपनी बात शुरू की। चौधरी इफ्तिखार बिना कुछ बोले सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखता रहा। मेरी धी का ब्याह सर पर खड़ा है जनाब। धी ब्याने के लिए 4 पैसों की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास एक धेला भी नहीं। मैं तो इस लायक भी नहीं कि धी को जहेज़ में 2 जोड़े चढ़ा सकूं। धी की बारात दरवाजे पर आएगी तो बारातियों की खातिर मदारत कैसे करूँगा? अब आपका ही आसरा है जनाब। आप अपना हाथ हमारे सरों पर रखेंगे ना तो मैं इज्जत से अपनी धी ब्याह दूंगा। ग़यास मोहम्मद ने हाथ जोड़े अपना मुद्दा बयान किया और फिर सर झुकाकर बैठ गया। तुझे क्या कमी है ग़यास मोहम्मद? तेरा भतीजा तो आप दुबई से कमाइया करके भिजवाता होगा ना। उसके माँ प्यो घर में रंगीन टीवी और फ्रिज भी ला कर रखे बैठे हैं। तेरे भाई का घर तो
भरा पड़ा है इन तमाम चीज़ों से। तुझे क्या ज़रूरत है धी को कुछ देने की? खाली हाथ भी भेज देगा ना तो वो वहाँ जाकर ऐश करेगी, ऐश। चौधरी का लहजा कुछ ज़्यादा ही तंजिया नजर आता था। वो अलग बात है सरकार, पर हमें तो ज़माने की रीत को निभाना है ना। धी को बिल्कुल खाली हाथ भेजकर उसका सर तो नहीं झुका सकते। भले वो मेरे सगे भरा का घर है, लेकिन मेरी धी के लिए तो उसका ससुराल ही है ना। बहुत ना सही, पर 2-4 चीज़ें तो मैं भी उसको जहेज के नाम पर दूंगा ना। फिर बारात पर लोगों की खातिर मदारत के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा। आप हम पर करम करेंगे ना सरकार, तो फिर ही कुछ हो सकेगा। आप थोड़ी रकम मुझे कर्ज दे दें तो मैं इज्जत से अपनी धी ब्याह दूंगा। गयास मोहम्मद अब गिड़गड़ा रहा था। थोड़ी सी रकम कर्ज दे दूं? मेरे पास कोई नोटों के दरख्त लगे पड़े हैं जिनसे नोट तोड़ तोड़ कर तुम्हारी झोली भर दूं। बड़ी बेटी के ब्याह पर इस तरह कर्ज दिया था तुम लोगों को। 2 साल हो गए, अभी तक आधा कर्ज भी नहीं उतारा तुम लोगों ने, और अब दोबारा मजीद कर्ज मांगने के लिए मेरे सामने आ खड़े हुए। तुम बेगैरतों की आंख का पानी बिल्कुल ही मर गया है। बजाय इसके कि अपने पिछले हिसाब किताब को चुकता करो, मुंह उठाकर दोबारा कर्ज मांगने चले आए। जाओ यहाँ से, निकलो, दफा हो जाओ। पहले पिछला हिसाब बेबाक करो और फिर आकर दोबारा कर्जे की बात करना। चौधरी ने रऊनत से गयास मोहम्मद को फिटकारते हुए अपना फैसला सुनाया।